Whereas the question on the Bharti case was decided in 1973, and the entire issue was that the basic structure of the constitution cannot be amended even by the Constitutional Amendment Act itself. Whereas this act which has been passed as the Citizenship Amendment Act, it is against the basic structure of the Constitution of India, because it has deprived the fundamental rights of the various classes, particularly with the other scheduled caste, scheduled tribes, OBC, etc., and specifically with the Muslim minorities, whose name has not been mentioned in the CAA Act itself. During the parliamentary debate also, the opposition leaders, they had raised their voice that why the name of the Muslim minorities are not included in this particular proposed act. So therefore, that answer provided by at that time of the legislators, that was not satisfactory at all, and accordingly they agreed and they passed it. Now, today the matter was listed today the matter was listed on 18th December 2019, wherein the Supreme Court Chief Justice bench was pleased to issue notice to the respondent for filing their counter affidavit of reply, but they did not file the reply till date. Now again they had requested the Supreme Court for providing 4 weeks time to file their reply to the cases which are pending in the Supreme Court. This CAA against, there are near about 144 writ petitions which have been filed from the various corners of the India, from various parties, on behalf of the various institutions and organizations. So now the matter has been adjourned for 4 weeks. Thereafter it will be listed again. For even during the course of the hearing, the granting of the interim relief was also considered, mentioned, and the Chief Justice of India has also observed that let us see what is to be done in this matter. So we are quite hopeful that the Supreme Court will do justice with this act, and certainly our relief may be granted by the Supreme Court. मैं और अच्छे से कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से जैसे आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो नहीं किया जा सकता है किसी भी कीमत पे, फिर सरकार ने इसको कैसे कर लिया और क्या कुछ बेस रहा है इस CAA को बनाने के लिए? ये जो मैटर है, ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का नहीं है। देयर इज एन एक्ट व्हिच इज नोन एज Citizenship Act 1955. It has been amended on various dates and various occasions. It was finally and lastly amended in 2019, which is under dispute. तो हम लोग का जो पिटीशन है इदारे शरिया का, वो ये कहता है कि जो अमेंडमेंट 2019 में किया गया है, that is against the basic structure of the Constitution. It is not the case of an amendment in the Constitution. It is the case of amendment in an existing act which is against the basic structure of the Constitution. More specifically, Section 14, which grants equality and equal rights to everyone, irrespective of their citizenship. इस केस में क्या हुआ है कि that particular Article 14 has been violated, जो कि बहुत apparent है, बहुत clear है. हम लोगों ने इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट पे रखा है. सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ इट, एंड देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैड ऑन लास्ट डेट issued notice to the central government, and central government did not file any reply on this date. Therefore, 4 weeks time is granted to the central government to file reply, and after Supreme Court Government of India files its reply, Supreme Court will take up the matter for two purposes: to consider granting of relief, number 1, number 2, or to suspend this act till actually Supreme Court adjudicates whether this amendment is intra-vires to Constitution or ultra-vires to the Constitution. That is the case. तो 4 सप्ताह के बाद एक बार फिर आपको यहाँ आना होगा इदारे शरिया के तहत। आप लोगों ने जो शिकायत दर्ज किया, ये तो लगता है जो इदारे शरिया ने पिटीशन दायर किया है, जो सवालात खड़े किए हैं, इनके जवाबात तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ही नहीं है। जाहिर सी बात है, आर्टिकल 14 कहता है कि मज़हब की बुनियाद पर कोई कानून नहीं बन सकता है यहाँ पे। ये डेमोक्रेसी मुल्क है, तो 4 हफ्ते में उन्होंने जवाब नहीं दिया, इन्होंने फिर 4 हफ्ते जवाब दिया, 12 भी हो जाए तब भी ये जवाब, इनके पास जवाब ही नहीं है। ये पूरे देश को बांटने वाला है, पूरे देश को गुमराह करने वाला है, और ये सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी को ये वायलेंट कर रहा है और एक दूसरे के साथ दूरियां बढ़ा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उम्मीद है, 4 हफ्ता ही सही, हमें उम्मीद है कि
माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको ज़रूर खारिज करेगा और हिंदुस्तान की लाज और इज्जत जरूर बचाएगा। लेकिन अमित शाह ने कह दिया है कि ये कानून बन गया, हर हालत में लागू होगा। आवाम की अदालत से, और सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट है। इस अदालत से बढ़कर कौन अदालत है? सबको कटघरे में आना है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी मुल्क है, ये संविधान से चलता है, किसी की जिद से नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी की भी जिद हो, वो जिद संविधान के आगे उसे मात खानी है। आप बोलेंगे? मैं वही पूछ लेना चाह रही थी। ये है आप बोलो। आज का डेट, आज का मैटर पॉलिटिकल हो जाएगा। हाँ नहीं आप इसीलिए मैं बन रहा हूँ। ये बताइए अब आगे सिविल सप्लीमेंट। टॉक टू मोर इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश, ठीक है? जिस तरीके से लोगों को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे, अमित शाह ने जो बयान दिया है कि ये कानून बन चुका है, फिर भी आप इदारे शरिया के तहत सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं और इसके खिलाफ आप लोगों के साथ हैं, क्या इनकी उम्मीदें जायज़ है? क्या उम्मीद करें हैं आपसे? देखिए, जो चीज़ें चैलेंज हुई हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब करने की जो सरकार की कोशिश है, एंड दिस अमेंडमेंट हैज़ क्रिएटेड ए केओस थ्रू आउट द कंट्री। जिस तरीके से लोगों में विरोध हो रहा है, और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि बहुत लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है। जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो विरोध हो रहा है, इसमें हर कम्युनिटी के लोग हैं। सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, SC हैं, ST हैं। तो सिर्फ ये कहना कि इस एक्ट के अमेंडमेंट होने से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मुस्लिम इफेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे लोग, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक हैं। सवाल हमें ये नहीं समझ में आता है कि आज की क्या ज़रूरत थी कि एक सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाने की, जब हमारे पास इतने सारी चीज़ें मौजूद हैं। आधार कार्ड लोगों के पास मौजूद है, लोगों के पास पासपोर्ट पहचान के तौर पे मौजूद है, जिसका एक प्रोसेस है, आप एक पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, उसका एक फॉर्मेट होता है, तस्वीरें खींचती हैं। मैं ये जानना चाह रही थी, जो इनकी उम्मीदें हैं आपसे, वो उम्मीदें जायज़ है? क्या आपको विश्वास है कि देखिए, एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बाबरी मस्जिद के जजमेंट आने के बाद लोगों का जो एक शक और शुबा बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट से जो एक उम्मीद थी उस वक्त, वो उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। लोगों के जहन में इस चीज़ों को उनसे कंपेयर किया जा रहा है। तो मेरा कहना है कि कम से कम इन चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा, और एक्ट को जो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको मैं नहीं समझता कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहने में कोई गलत है। क्या करूँगी, एक्ट्रेस से भी लगवाना होगा जरूरी, तो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे लिख के थोड़ा सा इस केस का डिटेल दें, ताकि जो एंकर पढ़ेगा ना, जो एंकर बोलता है, तो वो भी डिटेल दे। उर्दू में है, हमें हिंदी भी करके हाँ, हिंदी में आप करके दे दीजिए कि आप